یہ بات تو تحقیق سے ثابت ہے کہ جن نیک مردوں کے گھر میں بد عورتیں ہوتی ہیں، بے شک وہ اپنے شوہر سے چھپا کر یا بظاہر گناہ یا کفر کر رہی ہوتی ہیں، کہ یعنی خواہ وہ برائی اعلانیہ کریں یا مخفی۔ بے شک شوہر اس عورت کی گناہ میں شامل ہو یا نہ ہو، اس سے بیوی کی برائی کا پتہ ہو یا نہ ہو، ایسی عورت کے گناہ کے سبب شوہر پر آفت ضرور نازل ہوتی ہے اور اس کا خاندان بھی ویران ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مجازی خدا کا درجہ دیا ہے اور اس کا فرض ہے کہ باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی نظر رکھے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اور اپنے پورے گھر کی اصلاح مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت برائی نہیں چھوڑتی تو ایسی عورت کو گھر میں رکھنا جائز نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسی عورت کی وجہ سے آپ کسی آفت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑی آفت میں گرفتار ہونے کا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت اور آفت میں گرفتار کیوں ہوئے، اور پھر کس طرح آپ علیہ السلام کو اس آفت اور بلا سے نجات ملی۔ روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے تمام قصے سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک دن ایک جن جس کا نام سمندون تھا سے پوچھا کہ اے سمندون، تم نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا کہ اے حضرت علیہ السلام، میں نے دیکھا ہے کہ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس پر ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر ایک برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان بھی ہے، اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک منارہ بنا ہوا ہے، اور اس منارے پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کوشت پر جا کر دیکھا کہ 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین مالکہ اور اس کے ساتھ دختر برج اختر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ شہر کا نام کیا ہے اور مالکہ حسین نیک خاتون کون ہے، اس کے ساتھ جو دختر تھی وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہے۔ یہ باتیں میری سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ تم کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اسے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس ملک کے کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و زمین مالکہ آپ نے دیکھی وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں تجسم کی اس لیے بنائی گئی ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن اور غنیم آئے تو یہ اس کے آنے کی خبر دیتی ہیں، اور پھر ہم فوراً اسے مار ڈالتے ہیں، اور وہ جو عقاب ہے وہ ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، یعنی کہ وہ آواز لگاتا ہے، تو پھر ہم سب بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں۔ برسوں سے ہماری عبادت کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ جو شیر ہیں جب بھی 2 فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو فریادی اور اسامی دونوں میں فیصلہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ان دونوں کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر جو مجرم ہوتا ہے اسے یہ دونوں شیر پھاڑ کھاتے ہیں۔ اس لیے اس شہر میں کوئی بے راہ نہیں چلتا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہ سیدون شہر
का तमाम हाल समंदून जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बयान कर डाला। समंदून जिन से शहर सदून की हकीकत और माजरा सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को फरमाया कि तुम लोग शहर सदून में जाकर जिहाद के लिए चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनते ही तमाम जिन और तमाम फौज मुअज्जब हुक्म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर आ मौजूद हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि जल्दी से मेरा तख्त शहर सदून में पहुंचा दे। चुनांचे हवा ने मुअज्जब हुक्म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त को शहर सदून के करीब पहुंचा दिया। जब तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर से नुमाया हुआ तो वो तबल और अलम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बसात देखकर इसके मीनारों बुर्जों पर से पुकारने लगे। इन बुर्जों की आवाज़ों से अहले सदून समझ गए कि उनके शहर की तरफ कोई गनीम आ रहा है। तब तमाम अहले शहर और उनके तमाम सिपाही में लश्कर हथियारों के आरास्ता होकर जंग के वास्ते शहर सदून से निकले। और जब वो अपने लश्कर के साथ बाहर आए तो क्या देखते हैं कि एक जमात में फौज के तख्त पर बैठी हुई है, हवा पर चली आ रही है। ये सब देखकर वो बेहद हैरान हुए और बोले, हमने तो आज तक किसी बादशाह को इतनी शान और शौकत वाला नहीं देखा कि जो अपने लश्कर समेत हवा पर चला आ रहा हो और तैयार उसके सर पर साया फिगरन हो। वो सोचने लगे कि शायद ये कोई बहुत बुजुर्गी वाला बादशाह है। बस वो मैदान जंग में आकर खड़े हो गए और उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नों का एक काफिला उन लोगों से लड़ने के लिए भेजा और फिर वो जिन्नात इन काफिरों से लड़ने लगे, मगर वो कुफार इन जिन्नात पर गालिब आ गए थे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की दूसरी जमात को उन कुफार से लड़ने के लिए भेजा, मगर वो कुफार उन जिन्नात पर भी गालिब आ गए। फिर इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने आदमियों की फौज को उन कुफार से लड़ने के लिए रवाना किया और फिर उन आदमियों की फौज उन कुफार पर गालिब आ गई और सब कुफार को ज़ेर कर लिया। ये देख कर उनका बादशाह भी मैदान में आ गया। उस बादशाह का नाम अनकबूत था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि एक मुट्ठी खाक इस प्लीत की आंखों में डाल दो। हवा ने जो ही खाक इस प्लीत की आंखों में डाली वो अंधा हो गया और फौरन वश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शेर ने उस प्लीत का सर काट कर खा लिया। और बाज रवायात से मालूम होता है कि एक टिड्डी ने आकर उस प्लीत की आंखें खा ली और फिर इसी तरह वो प्लीत काफी जहन्नम वासिल हुआ और बाकी काफरों को लश्कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मार दिया और दरिया में बहा दिया। बादशाह अनकबूत की बेटी बेहद हसीना जमील थी। उसको अपने तख्त पर बिठाकर अपने साथ लेकर चले गए और तमाम शहर को वीरान में बर्बाद कर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह की बेटी को लेकर अपनी मुमलकत की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह की बेटी से कहा कि ए नेक बख्त, तू ईमान ले और मुसलमान हो जा। वो बोली कि बेशक मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मगर पहले मेरी मुलाकात मेरे वालिद से करवाओ। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप को तो मार डाला गया है, अब तुम्हारी उससे मुलाकात क्यों कर करवाई जा सकती है। आखिरकार बादशाह की बेटी की बहुत ज्यादा दरख्वास्त और जिद पर बादशाह के सर को उसके सामने पेश किया गया। वो अपने बाप का सर देखकर रोते हुए बेहोश हो गई और फिर काफी देर के बाद होश में आई और बेहद गिरियाजारी करती रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बहुत ज्यादा तसल्ली और तशफ़ी देते रहे और फिर कुछ अरसे के बाद बादशाहज़ादी मशरब इस्लाम हो गई। और फिर कुछ मुद्दत के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बादशाहज़ादी को अपने निकाह में ले आए और वो बादशाहज़ादी आप अलैहिस्सलाम की बेहद महबूब बीवी थी। आप अपनी इस बीवी से बेहद प्यार करते थे और इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते थे। चूँकि बादशाहज़ादी के मुल्क में उसके बाप की लोग पूजा किया करते थे, वो तो अपने बाप से बेहद प्यार करती थी। उसने अपने बाप की एक तस्वीर बना कर रखी थी और उसको पूजा करती थी। जैसा कि रवायत है कि एक दिन इब्लीस लईन ने आदमी की सूरत इख्तियार करके उस लड़की से कहा कि ऐ लड़की, तू बादशाहज़ादी है, क्यों अपने बाप की सूरत
बना कर नहीं पूछती ताकि तेरे बाप की रूह तुझसे खुश रहे जैसा कि वो अपनी ज़िंदगी में तुझसे खुश था। और कहा कि खबरदार ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना बताना। गर्ज ये कि उस बादशाहज़ादी ने अपने बाप की सूरत बना कर रखी और उसकी पूजा करती रही और इस काम में 40 रोज़ हो गए। एक और रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बादशाहज़ादी को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इस दावत पर उस बादशाहज़ादी ने कहा कि मैं मुसलमान भी हो जाऊंगी और तुम्हारी ज़ौजियत भी कबूल कर लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये कि मैं अपने बाप की सूरत बना कर सामने रखूंगी और उसकी सूरत परस्ती से अपने बाप का और अपना दिल शाद रखूंगी और फिर मैं अपना गम भूल जाऊंगी और इस बात की इजाज़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बादशाहज़ादी को दे दी। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने बादशाहज़ादी को बाप की तस्वीर बनाने की इजाज़त दे दी और वो औरत बाप की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करने लगी। और यही वजह थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चंद रोज़ आफत व बला में गिरफ्तार हुए और शायद तक तो हुकूमत से माजूर रहे। एक और रवायत में यूं भी आया है कि दुख्तर अनकबूत ने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज ईद कुर्बान है, कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। और बोली, मैं ईद कुर्बान पर टिड्डी कुर्बान करूंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि टिड्डी में तो गोश्त नहीं होता, लिहाजा इसको ज़िबा करने से क्या फ़ायदा है, तुम ऊँट खुदा की राह में कुर्बान करो तो इससे सवाब भी है। वो बोली कि नहीं, मैं तो टिड्डी ही ज़िबा करूंगी। और टिड्डी से उसकी गर्ज ये थी कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शहर सदून में जाकर उसके बाप से लड़े थे तो उस वक्त टिड्डी ने आकर उसके बाप की आंखें खा ली थी और वही बुग़्ज़ और अनाद उसने अपने दिल में पाल रखा था और वो अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए टिड्डी की कुर्बानी करने पर जोर दे रही थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वाक़ये को फरामोश कर बैठे थे और फिर उस औरत की जिद करने पर आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दे दी और कहा कि तुम टिड्डी मंगवा कर ज़िबा करवा दो। और जो उस औरत ने अदावतन टिड्डी मंगवाई और फिर उसे ज़िबा किया। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी ने ये 2 गुनाह किए थे कि अपने बाप की सूरत बनाकर घर में पूछती थी और ये खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम ना थी और दूसरा ये कि टिड्डी को बेगुनाह फ़कत अदावत की वजह से ज़िबा किया। इन 2 जुर्मों की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आफत बला में चंद रोज़ गिरफ्तार रहे। बस ये बात तो तहकीक से साबित होती है कि जिन नेक मर्दों के घरों में बद औरतें होती हैं वो शोहर से छुपा कर गुनाह करे, ख्वाह वो गुनाह खुफिया या ज़ाहिरन करें। और वाजिब है कि औरत के गुनाह के बायस उसका शौहर आफतों बला में गिरफ्तार होता है और इसका ख़ानदान भी वैरान होता है। जैसा कि कहा रब ताला ने तहकीक आजमाया हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और डाल दिया हमने ऊपर कुर्सी उसकी के एक धड़, फिर उसने रुजू किया अल्लाह ताला की तरफ। बस मामला कुछ यूँ हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अंगूठी दे रखी थी और उस अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था और उसको पहनकर आप मशरक़ मगरिब तक हुकूमत करते थे। जैसा कि कहा रब ताला ने कि तहकीक आज़माया हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को डाल दिया हमने ऊपर कुर्सी उसकी के एक धड़, फिर उसने रुजू किया अल्लाह ताला की तरफ। बस मामला कोई यूँ हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अंगूठी दे रखी थी। इस अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था और इसको पहनकर आप अलैहिस्सलाम मशरिक़ से मगरिब तक हुकूमत करते थे और फिर आप अलैहिस्सलाम के तावे तमाम मखलूक़ात थी और वो अंगूठी आप अलैहिस्सलाम के पास हर वक्त मौजूद रहती थी। मगर जब आप अलैहिस्सलाम अस्तंजे के लिए जाते तो वो अंगूठी अपनी एक खादमा हर्रम के हवाले करते, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला का नाम कुंदा था और वह अस्तंजे के लिए लेकर नहीं जा सकते थे। और फिर कुछ यूँ हुआ कि एक दिन मर्जी इलाही से ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिन्नों में से एक जिन जिसका नाम सहरा था वो थोड़ा बहुत जादू भी जानता था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत इख्तियार की और फिर वह अंगूठी खादमा से लेकर पहन ली और तख्त पर जा बैठा। यहाँ एक और बात भी आपको बताना मकसूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी जो बादशाहज़ादी थी वो जादू मंत्र वगैरह भी जानती थी, क्योंकि जिस कौम से वो आई थी वहाँ जादू और मंत्र आम थे।
اب کچھ یوں ہوا کہ وہ جن جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی تھی اور انگوٹھی ہاتھ میں پہنی تو تخت پر براجمان ہو گیا اور تمام جنوں انس اس کے گرد ہو گئے. پرندے سر پر سایہ کر کے پر پھیلائے موجود ہوئے. اور پھر جب صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا، ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام استنجے سے باہر آئے تو خادمہ سے انگوٹھی طلب کی. وہ بولی کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے جا چکے ہیں، اور کہنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھ سے انگوٹھی کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ انگوٹھی کس کو دی ہے؟ وہ خادمہ نہایت حیران اور پریشان ہوئی، بار بار کہا کہ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام نے لے لی ہے. اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے پاس گئے تو دیکھا کہ جن صخرہ آپ علیہ السلام کی صورت اختیار کیے ہوئے تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے اور تمام خلائق اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہیں. یہ سب دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے اور بولے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں. مگر کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو یقین نہ کیا اور آپ علیہ السلام کو وہاں گستاخی کر کے باہر نکال دیا گیا. یہ کہ ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کوئی تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس گاہ سے باہر نکال دیا. وہاں سے نکل کر آپ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے اور پھر بے طاقتی سے مارے بھوکے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو کچھ مانگا، مگر کسی نے بھی آپ علیہ السلام پر توجہ نہ کی. اس کے بعد آپ علیہ السلام بے حد دکھی اور مایوس ہو کر شہر میں آ گئے اور یہاں بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی، مگر گردش تو یہاں بھی ساتھ تھی، کہیں سے بھی کچھ کھانے کو نہ ملا. اس کے بعد چاہا کہ نوکری کی تلاش کی جائے، مگر کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو نوکری نہ دی. پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نڈھال دریا کے کنارے گئے. وہاں مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا، مگر ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنے ساتھ نوکری میں رکھ لو، میں تمہیں مچھلیاں پکڑ کر دوں گا. ایک بزرگ ماہی گیر نے آپ علیہ السلام کو نوکری پر رکھ لیا اور مزدوری میں ہر روز 2 مچھلیاں دینا مقرر کیا. آپ علیہ السلام مچھلیاں پکڑنے لگے. پورے دن رات کی محنت سے صرف 2 ہی مچھلیاں پکڑ سکے اور وہی 2 مچھلیاں ماہی گیر نے آپ علیہ السلام کو مزدوری میں دیتی. پھر آپ علیہ السلام ایک مچھلی بیچ کے بازار سے روٹی لائی، دوسری مچھلی تل کر کھا لی اور اس طرح دربار سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کئی دنوں کے بعد کھانا کھایا اور باقی کھانا غریبوں میں بانٹ دیا. اسی طرح 40 روز تک آپ علیہ السلام اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے، خود کھاتے اور باقی محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے. اور 40 دن صخرہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معلوم ہونے لگا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی نے ظاہر نہ کیا. اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند اور ہوشیار تھا. جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے کون ہے، اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے. بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہے، کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ خادمہ جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے وہ بولی کہ آج 40 دن ہو گئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے، ورنہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنی خاتم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے. بس آصف جن نے یہ سن کر یمینا سے کہا کہ بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں. اسی وقت اس نے 40 آدمی توریت خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر توریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی. جب وہ لوگ توریت پڑھنے لگے تو تب وہ صخرہ جن
जो तख्त पर बैठा था यह कलामे इलाही सुनकर तख्त पर ना ठहर सका। आखिर वहाँ से अलग होकर उस तख्त से एक किनारे पर जा बैठा, फिर वहाँ भी ना ठहर सका। वो वहाँ से भी भागा और वो खातिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में डाल कर चला गया। मर्जी इलाही से एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन मछली वालों की नौकरी बचा ला कर थके मांदे दरिया के किनारे सो रहे थे कि अचानक एक सांप आया और एक सब्जा अपने मुंह में लेकर आप अलैहिस्सलाम पर हवा करना शुरू कर दी। एक मछेरे की बेटी थी, उसी मछेरे की एक बेटी थी और वो बड़ी खूबसूरत और साहिबे जवान और जवान थी। हर रोज अपने बाप का खाना दरिया के किनारे लाया करती थी। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे सोता हुआ पाया। वो देख कर हैरान हुई कि एक आदमी सोता है और एक सांप उन पर हवा कर रहा है। वो दुख्तर दरअसल जवान थी। ये हाल देखकर उसने अपने बाप से जाकर कहा कि ऐ बाजान, मुझको तुम इस शख्स से ब्याह दो तो बहुत बेहतर है। मैं इसके सिवा किसी दूसरे से ब्याह ना करूंगी। तब वो माहीगीर अपनी बेटी को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। कहा कि मैं अपनी बेटी से तुमको ब्याह दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ और मैं नौकरी करके पेट पालता हूँ और मुझको रोजमर्रा 2 मछलियाँ उजरत हजूर से मिलती हैं, इन्हीं को खाता हूँ। बताइए कि मैं आपकी बेटी की खुराक और मोहर कहाँ से दूंगा। ये सुनकर वो बोला कि मेरी बेटी आप अलैहिस्सलाम से मोहर नहीं मांगती और खाने को मैं देता रहूंगा, यानी कि खाना मेरे जिम्मे है। बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात उसकी कबूल कर ली और उसके साथ उसके मकान पर जाकर उसकी बेटी से ब्याह कर लिया। फिर तौबा इस्तग़फ़ार करके खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। फिर जुमला इस सखरा जिन ने जो अंगुश्तरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरिया में डाल दी थी और डाल कर भाग गया था, इस अंगूठी को एक मछली निगल गई और तमाम मछलियां दरिया की इस अंगूठी के सबब से इस मछली की मतियों पर मंबरदार हो गई। दूसरे दिन सब माहीगीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर इस दरिया में जहां अंगुश्तरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सखरा जिन ने डाली थी वहां मछली के शिकार को गए। खुदा के हुक्म से वो मछली की जिसने अंगुश्तरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगली थी वो जाल में पकड़ी गई। बस मछेरे ने इस मछली को और 2 और मछलियों को लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उजरत दी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तीनों को लेकर इनमें से 2 मछलियां बेच डाली और एक मछली अपनी बीवी के हवाले कर दी कि इसको ज़िबा करके साफ करो। जब उनकी बीवी ने इस मछली का पेट चीरा तो वो अंगुश्तरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसकी शिकम से निकल पड़ी। इसकी रोशनी से सब घर में उजाला हो गया। मछेरे की बेटी ये अजूबा देखकर बेख्यार पुकार उठी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी पहचान ली और अपने हाथ में पहन ली और मुर्गाने हवा आकर सर पर साया फिगन हो गए और जिन्हों इस जमी खलाइक मुलाजमा में बदस्तूर साबिक आकर हाजिर हो गया और हवा ने शाही तक ला कर मौजूद कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी माहीगीर की बेटी से कहा कि मैं सुलेमान इब्ने दाऊद हूँ और तमाम अहवाल अपना अव्वल से आखिर तक बयान किया और फिर हवा का हुक्म हुआ और फिर हवा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त समेत अपने मकाने खास पर पहुंचा दिया और जितने मुलाजमान थे सब ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने दरबार आम में हाजिरी दी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में जाकर अपनी बीवी लईना को जो सैदूनिया अनकबूत लईन की बेटी थी जो अपने साथ जादूगरी भी लाई थी उसको और उसके साथ 4000 लोनियों को मरवा दिया और जो किताबें जादूगरी की थी जो अनकबूत की ममलकत से सखरा जिन शहर सैदून से लेकर आया था, जिन किताबों के और इस जादू के सबब सखरा जिन ने आप अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करके 40 रोज हुकूमत की और आप अलैहिस्सलाम को मुसीबत और बला में गिरफ्तार किया। इस जादू की किताब को पारा पारा करके फेंक दिया गया। एक और रवायत से मालूम होता है कि इस किताब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा हिंदुस्तान में भी पहुंचा था। इसी से लोग अब तक जादूगरी करते हैं। इन सब कामों के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
सखरा जिन को तलब किया, लेकिन उसको ना पाया गया और तमाम जिनों को हुक्म किया कि उन लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन मालूम ना कर सके कि सखरा जिन गया किधर। बहुत कोशिश के बाद मालूम हुआ तो फिर उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए नबी अल्लाह, सखरा जिन आप अलैहिस्सलाम के खौफ से भी समंदर के जाकर छुप गया है और हम बगैर कुछ हीला किए इसको पकड़ नहीं सकते और आपके पास हाजिर नहीं कर सकते। अगर आपका हुक्म हो तो हम लोग को झूठ बात बनाकर उससे जाकर कहें तो मुमकिन है कि हम लोग उसको पकड़ने में कामयाब हो जाए और उसे गिरफ्तार करके आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश करें। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा जाओ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की इजाजत से वह जिन्नात समंदर के बीच में जाकर पुकारे, ए सखरा तू कहाँ है, अब निकल आ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर चुके हैं और आप अलैहिस्सलाम के मरने की खबर सुनकर वो जिन समंदर के बीच में से निकल आया और फिर उसको जिन्होंने गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर दिया। 40 दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अज़ाब और कैद में रखा और इसके बाद शिकंजे में जकड़ कर पत्थर में डाल दिया। कहते हैं कि अब तक वो उस शिकंजे में पड़ा हुआ है, क़यामत तक इसी तरह शिकंजे में पड़ा रहेगा। बस इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई बरस तक हुकूमत की और बैतुल मुक़द्दस जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसको और भी बड़ा करके बनवाया और फिर जिन्नों को हुक्म दिया कि इसकी दीवारें संगे सफ़ेद की बनाई जाएं, क्योंकि इस तरह खूबसूरत मालूम होती है। और जिन्हों ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इसकी तामीर की और सतून भी इसके 40 गज लंबे संगे मरमर से बनाए और क्वार दरवाजों के आबे नोश के लगाए। एक दरवाजे का नाम बाबे दाऊद और दूसरे दरवाजे का नाम तुबा, तीसरे दरवाजे का नाम बाबे रहमत और चौथे दरवाजे का नाम नबीउल अरबी आखिर ज़मान रखा। और छत भी सबा की लकड़ी से बनवाई गई और इस दीवारें इसकी सोने से मज़य्यन की गई और मस्जिद के अंदर कंदीलें चांदी की लगाई गई और कंदील में तेल की जगह लाले शब चिराग था और इसकी रोशनी से सब रोशन हो जाता था और गंधक सुरख से कंदीलों को तरतीब दिया जाता था, ऐसा कि 3 कोस तक इसकी रोशनी की शौक जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि वही गंधक सुरख कीमिया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अनायत फरमाई थी। एक रोज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुंबद के दरवाजे पर जो शीशे के बनाए हुए थे अपना सर टेक कर खड़े हुए थे, कि यानी कि ऐसा के सहारे खड़े थे कि मलकुल मौत हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम मेरी मुलाकात को आए हो या मेरी जान कब्ज़ करने के वास्ते आए हो? मलकुल मौत बोले कि मैं तुम्हारी जान कब्ज़ करने के वास्ते आया हूँ। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो मुझे ज़रा पानी पीने की मोहलत दे दो। इसके जवाब में मलकुल मौत ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म में अब कुछ देर नहीं कर सकता, बाप के वास्ते पानी पीने का हुक्म खुदावंदी नहीं है। चुनांचे जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा पर टिके खड़े थे, उसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी मौत की खबर पहले से हो चुकी थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का कमरा बना रखा था जिसमें आप अलैहिस्सलाम जिन्नात को तामीर करते हुए देखते रहते थे और अपना तमाम दिन वहीं गुजारते थे और इबादत करते थे। तामीर का काम अभी अधूरा था और जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे और वो आप अलैहिस्सलाम से बेहद डरते थे। अगर उन्हें उस वक्त आपके इंतकाल की खबर हो जाती तो वो अपना काम अधूरा छोड़कर भाग जाते और तामीर अधूरी रह जाती। और फिर वैसे भी जिन्नात इस बात का बहुत दावा करते थे कि हमें गैब का इल्म है। मलकुल मौत ने अलैहिस्सलाम की जान असा से टेक लगाए लगाए में कब्ज़ कर ली और बाहर से देखने वाले जिन्नात को यही नजर आता रहा कि आप अलैहिस्सलाम असा से टेक लगाए उनके काम को देख रहे हैं और वो उसी जान फिशानी से अपने काम में मगन रहे। एक रवायत में है कि इसी तरह एक बरस तक आप अलैहिस्सलाम का जस्ते खाकी असा से टेक लगाए खड़ा रहा और एक बरस तक किसी को खबर ना हो सकी। और बाज़ रवायत में है कि 2 महीने तक आप अलैहिस्सलाम की वफात की किसी को खबर ना हो सकी। तमाम जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मगन रहे, जहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के असा को घुन ने खा लिया। तब आप अलैहिस्सलाम का जस्दे खाकी ज़मीन पर आया। तब आप अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा पर मुअल्लक था एकदम लोगों की नज़रों से ओझल हो गया।
तब लोगों को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है और आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल हुए कई रोज हो गए हैं और कई रोज से असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम बेजान खड़े थे। ये देखकर जिन अफसोस करने लगे और शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि उन्हें अपनी गैब दानी पर बड़ा मान था और अफसोस इस बात का भी था कि उन जन्नात को वो आप अलैहिस्सलाम के डर से काम कर रहे थे। उन्हें ना मालूम था कि असा के सहारे बेजान सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, वरना वो कब के काम छोड़कर भाग जाते। बस खुदा की मर्जी भी यही थी कि जिन्हों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की खबर ना हो सके, वरना वो सब काम छोड़कर भाग जाते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल ना हो पाती। जैसा कि कहा रब ताला ने कि बस जब फैसला किया हमने उस पर मौत का, तो फिर हमने ना खबर की उसकी मौत की किसी को, लेकिन खाता रहा उसका असा कीड़ा। बस जब गिर पड़ा फिर मालूम हुआ जिनों को, अगर वो जिन खबर रखते गैब की बात तो रहते जिल्लत के साथ तकलीफ में। और एक और रवायत में यूं भी आया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों के हाथ से बैतुल मुक़द्दस बनवाते थे। जब आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मौत आ पहुंची है, फिर आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को पूरा इमारत का नक्शा तैयार करके दे दिया और खुद आप अलैहिस्सलाम शीशे के मकान में दरवाजे बंद करके बंदगी खुदा में मसरूफ हो गए। और बाद वफात 1 बरस तक जिन लोग मस्जिद बनाते रहे, और जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो जिस असा पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगा कर खड़े थे, घुन खा लिया और आप अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तब सब पर वफात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की का इंकशाफ हुआ और आप अलैहिस्सलाम का तब लोगों की नज़रों से ओझल हुआ, और जो जिन लोगों से गैब दानी का दावा करते थे सबके सब कायल हो गए। अल्लाह आदम बिस्वाब। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद और सलाम हमारे आका मौला हबीबे खुदा सैयदुल अंबिया खातमुल नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्ता, तमाम औलिया, तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गान दीन पर, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार।